ویلکم ٹو آن مائی مائنڈ. دوستو میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ فاز. آج کے پوڈ کاسٹ میں میں حاضر ہوں اپنے ایک مہمان کے ساتھ جو کہ میڈیکل فیلڈ سے ہیں. MBBS کے ساتھ ایک سائیکائٹرسٹ بھی ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جناح میڈیکل کالج میں. اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت ہاسپٹل نشتر آباد پشاور میں پاکستان سائیکائٹرک سوسائٹی میں انفارمیشن سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر علی احسان مفتی سے. ویلکم ٹو آن مائی مائنڈ ڈاکٹر علی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. نہیں، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. اور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وی آر آل کمنگ بیک ٹو لائف سنس کووڈ نے ایک سیکنڈ ویو آئی تھی. اس نے پاکستان کو بہت ہارڈ ہٹ کیا. کافی ڈاکٹر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی شہادت ہوئی. تو وی آر ٹرائنگ ٹو کم بیک انٹو آور لائف وتھ آل دی SOPs. چلیں، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر علی، میں نے ایک ریسرچ میں کہیں پڑھا ہے کہ تقریباً 36% پاکستانی سفرنگ فرام ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، آپ نے جو ریسرچ پڑھی ہے یہ بالکل درست ہے. یہ ریسرچ چند سال پہلے ہوئی تھی اور یہ پاکستانی پاپولیشن میں آف کورس ہوئی تھی. اور اس ریسرچ کے مطابق پاکستان کی پاپولیشن 1/3 لوگ جو ہیں وہ یا ڈپریشن یا انگزائٹی یعنی کہ اداسی کی بیماری یا گھبراہٹ کی بیماری کا شکار ہے. تو اگر آپ 1/3 کو دیکھیں تو یہ 33 سے 37% آف ہماری پاپولیشن کا حصہ بنتی ہے. تو یہ ریسرچ ایک کافی مشہور ریسرچ ہے. اس کے بعد بھی کافی ریسرچز ہوئی ہیں لیکن آلموسٹ میرے خیال میں یہ ساری ریسرچز پری کووڈ ایرا میں ہوئی تھی. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کووڈ کے بعد کیسا کتنا انکریز ہوا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی میں. اوکے. ایک اور بات ڈاکٹر علی کہ 14% جو ینگ اسٹوڈنٹ ہیں ان میں PTSD یعنی پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز جو ہیں اور بائیپولر ڈس آرڈرز جو ہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں ارلی لائف میں اگر وہ کسی ایسے واقعے سے گزریں. کیونکہ لاسٹ ویک میں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں اٹ واز چلڈرن مینٹل ہیلتھ ویک، تو اس کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ چلڈرن مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ چھوٹی عمر سے جب وہ بلنگ کا شکار سب سے بڑی بات اگر وہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کچھ بتائیں گے کہ ایسے بچوں کی کیسے ٹریٹمنٹ کی جائے، یا پاکستان میں کچھ ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں جہاں پر وہ یا ان کے والدین لے کر ان کو جا سکیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اگین اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے چلڈرن مینٹل ہیلتھ ویک کو سیلیبریٹ کیا اپنے پوڈ کاسٹ کے تھرو. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو PTSD جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بعد سانحہ ذہنی دباؤ یا ذہنی صدمہ اور بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈرز، یہ دونوں مختلف نوعیت کی بیماریاں ہیں بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی. بچوں میں جب بھی ہم ذہنی بیماریاں سائیکیٹرک بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی پریزنٹیشن بڑوں سے کافی مختلف ہوتی ہیں. بچوں کی اگر بات کی جائے اور اگر ہم PTSD کی بات کریں تو PTSD کے لیے ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ بہت بڑے ایک ٹرامیٹک ایونٹ سے گزرے ہوں. ٹرامیٹک ایونٹ ان دا فارم آف ٹیررزم، یا ہو سکتا ہے کوئی بہت آپ کے سامنے کوئی کرائم ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی جیسے آپ نے ذکر کیا چائلڈ ابیوز یا فزیکل ابیوز کا شکار ہوئے ہوں، اور پھر وہ ایونٹ آپ کو بار بار فلیش بیکس کی صورت میں آپ کو تنگ کر رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کو ہائپر اراؤزل ہو رہی ہو، یعنی کہ آپ کو بے چینی، صدمہ، آپ کو انگزائٹی، گھبراہٹ فیل ہو رہی ہو. اور اس صورت میں لوگ تو کہتے ہیں کہ عموماً لوگ تو کہتے ہیں چلو یار سوچو موو آن، لیکن وہ اس بچہ یا ایک ایڈلٹ کے لیے اس کے اختیار میں نہیں ہوتا اور اس کو PTSD ہو جاتا ہے. اور اس میں ابھی تو ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے برین میں یہ چینجز آتی ہے، آپ کی برین کی اناٹومی میں، برین کے اسٹرکچر میں چینجز آتی ہے. آپ نے بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کا بھی ذکر کیا. یہ بھی ایک خاص نوعیت کی بیماری ہے جس میں اس کا نام ہی اس کی بیماری کی تعریف کرتی ہے. جیسے کہ بائی پولر، دو پولز، کہ کبھی مریض جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کبھی مریض جو ہے وہ مینیا کا شکار ہوتا ہے. مینیا یعنی کہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، یوفورک ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور جب ڈپریشن کا شکار ہو تو شدید نوعیت کی ڈپریشن، اور جب خوش ہو، ایکسائٹڈ ہو، ایلیٹڈ موڈ ہو اس کا، تو اتنا ایلیٹڈ کہ پھر وہ
गुस्से में आके फिजिकली अब्यूज कर सकता है, मार-धार, एग्रेशन और वायलेंट कभी, और कभी-कभी उसके ऐसे ख्यालात आते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स, यानी कि ऐसा समझना कि जैसे मुझे अल्लाह ताला ने कोई खास ताकत दी हुई है और लोगों पे शक शुबा भी करना। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर तो बच्चों में और बड़ों में उनकी प्रेजेंटेशन सेम ही होती है अगर आप मेनिया की सूरत में है, लेकिन बच्चों में डिप्रेशन थोड़ा चेंज होता है क्योंकि बच्चे अपने डिप्रेशन का इजहार मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, अपने पेट के दर्द में, अपने सर के दर्द की सूरत में, या गुस्से की सूरत में, या खेलना ना, या अपने दोस्तों के साथ मेल जोल के रवाबित को बंद कर देना। लेकिन PTSD का भी जो है बच्चों में उसको डायग्नोज करना एक बहुत एक मुश्किल काम मैं समझा जाऊंगा, क्योंकि आपने इस्टेब्लिश करना होता है कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, स्पेशली जैसे आपने बात की चाइल्ड अब्यूज की, तो चाइल्ड अब्यूज पहले तो हमारे मुआशरे, जो कि मैं अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात करूं तो वालिदैन बताते नहीं है क्योंकि यहाँ इसको स्टिग्मा समझा जाता है, और अगर आपको तीसरी चौथी मीटिंग में पता भी चल जाए तो वो कहते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि उस चाइल्ड अब्यूज किसी किस्म का भी हो सकता है, मैं उसमें और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन चाइल्ड अब्यूज ने गहरा असर, एक साइकोलॉजिकल स्कार छोड़ा है जिसकी वजह से बच्चा परेशानी का शिकार है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हाँ जी, पाकिस्तान में काफी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, पेशावर से लेके कराची तक हमारे माशाल्लाह ज़हनी सेहत इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, काफी ऐसी NGOs हैं जो कि काम कर रही हैं बच्चों के लिए, जिसमें हमारी अपनी होराइजन NGO है जो कि जिसमें मैं काम करता हूँ। हमने जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा हुआ था 2014 दिसंबर में, तो उसके बाद हमने उन बच्चों के साथ हमने काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, और हमारे उस काम को इतना सराहा गया कि हमने उस पे आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस तो लिखी, लेकिन एक अमेरिकन जो कि साइकियाट्रिस्ट बुक पढ़ते हैं अपने एग्जाम पास करने के लिए, उस पे हमने एक चैप्टर भी लिखा, तो जिसको उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया। अच्छा डॉक्टर अली, एक तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, मेंटल हेल्थ को स्टिल एशियन कम्युनिटी में, या आप जो पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पर भी हम एशियन कम्युनिटी में एक टैबू समझते हैं। बेसिकली लोगों को पागल कह देते हैं और ऐसे उनको पागल खानों के हवाले कर देते हैं, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल्स को पागल खाना क्यों पुकारा जाता है? हम कहाँ लैक करते हैं कि हम हॉस्पिटल्स नहीं कहते, हम पागल खाना पुकारते हैं? देखिए, अगर तो मैं आपको बताऊं तो मेंटल हेल्थ अगर मैं बड़ी बेसिक्स में आपको लेके समझाऊं, अगर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की दो किस्में होती हैं, एक न्यूरोटिक और एक साइकोटिक। न्यूरोटिक हर वो बीमारी होती है जिसमें आपको अपने बारे में पता होता है कि मुझे बीमारी है, मेरे अंदर मसला है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम की बीमारी। और साइकोटिक वो बीमारियां होती हैं जिसमें मरीज कहता है कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, ये लोग वैसे ही मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, जैसे कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें आपकी सोच शक पे असर करती है, और कुछ एडिक्शन की बीमारियां। तो पागल खाने में उन लोगों को लेके जाया जाता है जो कि साइकोटिक बीमारियों का शिकार होते हैं। लेकिन अब वो जमाना चला गया कि लोग कहते थे कि पागल खाना, ये देखिए वक्त के साथ साथ जमाना चेंज होता है, और जब हम अर्ली फर्स्ट डिकेड ऑफ 2000 में जब हमने एंटर किया तो पागल खाने का कॉन्सेप्ट चला गया, और अब हमारे साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गए, और साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशंस में आपके साथ न सिर्फ साइकियाट्रिस्ट बल्कि मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होता है। दूसरी बात थी कि अभी लोगों को, अभी हमारे पाकिस्तान में भी इवन अवेयरनेस आ रही है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो एशियन कम्युनिटी UK में रहती है उसमें भी अब ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का ये मतलब नहीं कि आप पागल हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसे ज़हनी उलझने होती हैं कि जिसका हल आपके पास नहीं हो सकता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाके उसका हल मिले, बल्कि हो सकता है आपको अपनी ज़हनी प्रॉब्लम्स में समझाने में मदद मिले। मेंटल हेल्थ के बारे में अगर आपको मैं बात करूं तो WHO बार बार ये कह चुका है कि WHO कहते हैं नॉर्मल हेल्थ तभी हो सकती है कि जब आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, यानी कि समाजी हेल्थ, और स्पिरिचुअल, ये चार चीजें अगर आपकी नॉर्मल हो तब ये आपको हेल्दी कंसिडर किया जा सकता है। तो लिहाजा मेंटल हेल्थ की तो बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, और मेंटल हेल्थ को मैं ऐसे ही ले सकता हूँ कि आप जैसे कि आप रोजाना एक्सरसाइज करने जाते हैं, लेकिन आपको शुगर की बीमारी नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, लेकिन आप एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, तो आप फिजिकल हेल्थ की लोग देखभाल कर रहे हैं,
इसी तरह अपनी मेंटल हेल्थ की भी देखभाल कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको डिप्रेशन हो, आपकी एंजाइटी हो, लेकिन मेंटल हेल्थ आपको ज़हनी सोचों की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप अपने दिल का हाल अपने करीब अपने प्यारों से उनको वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस कहते हैं, जज्बात का इजहार करें। और जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव स्ट्रेस कोपिंग, गुस्से पे काबू रखने की कोशिश करें। और एक अलग टॉपिक है जिस पे हम बहुत तवील बात कर सकते हैं। एक और भी तो मसला आ जाता है डॉक्टर अली कि जब कभी अपने कम्युनिटीज़ में देखें या अपने रीजन में देखें, आपने भी देखा होगा कि अगर कभी ऐसी कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो उसको रिलेट कर देते हैं कि इसके ऊपर कोई जादू हो गया है, उनको पीरों फकीरों के पास ले जाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको समझने की ज़रूरत नहीं होती कि इसमें ये किसी मेंटल हेल्थ या किसी जहनी परेशानी की वजह से ये जो हो रहा है, ये भी तो प्रॉब्लम है वहाँ पर। आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि जब भी हमारा मेंटल हेल्थ, ज़हनी अमराज, ज़हनी सेहत से मुतालिक कोई बात होती है, सबसे पहले पीरो फकीरों के पास ले जाया जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता पीरो फकीरों ये कोई बुरी बात है। बिल्कुल उनकी अपनी रूहानियत के अपनी हमारे मुआशरे में एक जगह है, लेकिन ये बेहतर बिल्कुल समझने की जरूरत है कि जब आपको पेट में राइट साइड पे दर्द हो, आपको पेट में पीछे की तरफ, कमर की तरफ दर्द जाए, आपको उल्टियां हैं, तो अगर आपको अपेंडिक्स डायग्नोज हो तो आपको कोई पीर फकीर नहीं ठीक कर सकता, आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा। लिहाजा अगर आपको डिप्रेशन की अलामात हो, अगर आपको ओसीडी, पीटीएसडी, बाइपोलर अफेक्टिव के अलामात हो, तो कोई पीर फकीर आपको नहीं ठीक कर सकता। इसके लिए आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट पर जाना पड़ेगा कि जो कि आपकी बातों को तहम्मुल सुने, आपकी फैमिली अंडरस्टैंड कर, आपको एज अ पर्सन अंडरस्टैंड करे और आपकी बातों का हल निकाले, आपकी प्रॉब्लम्स हल निकाले, चाहे वो दवाई की सूरत में हो, चाहे वो दवाई की सूरत में ना हो, वो आपको गाइड करेगा। और बिल्कुल आप पीर फकीर के पास जाएं, उनसे दुआ लें, उनसे दुआ करवाएं, लेकिन आपको मेरे ख्याल में इस सिलसिले में तावीज़ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं। ये बताइए डॉक्टर अली कि ये प्री और पोस्ट पेंडेमिक मेंटल हेल्थ के केसेस में कितना फर्क देखते हैं, मतलब क्या उनके क्या डिफरेंट रीजन हुए हैं, क्या कुछ इसमें आप क्या फर्क देखते हैं? जी, मैं तो आज भी जब क्लिनिक से आ रहा था तो मैं काफी एग्जॉस्टेड था, फटीग था। और कोरोना पोस्ट कोविड एरा के बाद जो हमारी ज़हनी सेहत से मुतालिक ज़हनी अमराज ज्यादा हो गए हैं, तो उसी पे मैं बात कर रहा था कि मरीज बहुत ज्यादा हो गए हैं, बल्कि हम पे बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है। और उसकी मुझे लगता है 2 रीजंस हैं। एक तो लोगों में पाया जाने वाला खौफ। देखें, हर तीसरे बंदे में कोरोना फोबिया आ गया है। और जब शुरू में लॉकडाउन आया था, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो बार बार हाथ धोना, बार बार अवॉइड करना बाहर जाने से, और अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आपको शक हो कि मेरे किसी से मेल मिलाप हुआ है तो हाथ धोना। तो थोड़ा सा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कि वहम की बीमारी है, उस जैसी अलामत तो सब पाकिस्तान में ही देखी गई थी, बल्कि सब दुनिया में ही देखी गई थी। तो उस टाइम तो हमें ये भी लगा कि जो ओसीडी के मरीज है उनका दर्द हमने भी समझा, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने एसओपीज को जरा मॉडिफाई किया। दूसरी बात ये कि कोरोना की वजह से लोग थक चुके हैं, उनको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, उनका माशी बहुत नुकसान हुआ है, उनका उसके अलावा समाजी बहुत नुकसान हुआ है, मिलने के तौर तरीके बदल गए हैं, बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात हैं। तो एक तो ये जो है नुकसान फैमिलीज पे आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रही हम कैसे टैकल करें। एक तो ये ग्रुप है जिनको ज़हनी मसले आ रहे हैं और वो वाकई कोरोना फोबिया के साथ, पैनिक के साथ आ रहे हैं। अच्छा, एक वो लोग हैं जिनको कोरोना तो हो गया, और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा जिनको माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, अगर 3 इंटेंसिटीज होती हैं, तो मॉडरेट टू सिवियर यानी कि जिनको काफी ज्यादा कोरोना हुआ और जिनके लंग्स भी इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो कि कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, उनमें ज़हनी बीमारियां बहुत देखी गई हैं। वो अपने पहले वो कोरोना से पहले, बीमारी से पहले अपने गुस्से पे काबू रखते थे, अब अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पा रहे। उनको उदासी की बीमारी, घबराहट की बीमारी भी हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि उनकी याददाश्त में कमी आ रही है। यंग लड़कों में याददाश्त के मसले आ रहे हैं। तो उसको हम इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। इसको पोस्ट कोविड फटीग भी कहते हैं या पोस्ट कोविड मेमोरी लॉस भी कहते हैं। और ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल इसका वक्त पे इलाज हो जाए, अपने वक्त के साथ साथ रिवर्सिबल भी है। तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म की हमने देखे हैं कि ज़हनी बीमारियों में एकदम राइज हुआ है पोस्ट कोविड एरा में।
डॉक्टर अली, आपको तो मालूम है कि जो एक्सट्रीम सिचुएशन मेंटल हेल्थ की ले जाती है, वहाँ पर हम अपनी लाइफ को खो देते हैं, सुसाइडेड केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन शुक्र है एज अ मुस्लिम पाकिस्तान में खुदकुशी को, क्योंकि हम एज अ मुस्लिम हम खुदकुशी को हराम समझते हैं, इसलिए आई थिंक पाकिस्तान में सुसाइडेड केस दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत कम है। लेकिन डिप्रेशन, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिप्रेशन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारा मुल्क एक टेररिज्म से निकल के आया है, यहाँ पे दहशतगर्दी से निकल के आया है। हमारी माशी सूरत बहुत मुश्किल थी, हर घर से 2-3 बंदे जो थे वो बाहर मुल्क कमाने गए थे, तो यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा अगर देखा जाए तो हमारे शहरों के मुकाबले में हमारे देहाती और औरतों में भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि देहात की औरतों को इतना एक्सपोज नहीं किया जाता, उनको घर के अंदर रखा जाता है, 4 दीवारी से उनको निकलने की इजाजत नहीं होती। एक्सक्यूज मी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देहाती औरतों में ये बहुत देखा गया कि बहुत डिप्रेशन है, और विटामिन डी की भी उनकी में कमी होती है, तो डिप्रेशन और भी ज्यादा होता है, क्योंकि अब तो ये भी रिसर्च कहती है कि विटामिन डी की वजह से की कमी की वजह से डिप्रेशन ज्यादा है। जहां तक आपने एंग्जाइटी की बात की, जब एक बंदे को डिप्रेशन होता है तो उसके साथ अगर 100 बंदों को डिप्रेशन है तो 30 से 35% बंदों को साथ में एंग्जाइटी भी जरूर होती है, यानी कि घबराहट, चिड़चिड़ापन, आपके दिल की धड़कन तेज होना, और आपको हर वक्त एक परेशानी की कैफियत रहना। और अगर आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल ना हो तो पैनिक डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि आपको लगता है कि मेरी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, मेरा सांस बंद हो जाएगा, और हो सकता है कि मुझे मौत आ जाएगी, जिसमें ज्यादातर बंदे आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी लैंड करते हैं। जहाँ डिमेंशिया की बात है, डिमेंशिया भी हमारे मुल्क में है, और देखा गया कि डिमेंशिया ज्यादातर 60 साल या उससे ज्यादा, जो कि याददाश्त की बीमारी है, 60 साल या उससे ज्यादा लोगों की उम्र में देखा गया है। डिमेंशिया की भी अपनी अपनी वजूहात है, लेकिन डिमेंशिया भी हमारे मुल्क में बहुत है। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी हमारे मुल्क में काफी ज्यादा है, बल्कि जो आपने जो फिगर कोड के तहत 35 से 36%, मेरा तो ख्याल है कि अभी अगर तहकीक कराई जाए तो ये तकरीबन 40% तक पहुंच चुका होगा। चलिए, अभी ये तो रीजंस भी हमें पता है, सब कुछ हम जानते हैं कि क्या क्या रीजंस है, इनका सॉल्यूशन, इनका हल क्या होना चाहिए। और आपका भी तो एक इदारा है जो काम करता है होराइजन के नाम से, तो कुछ अपने इदारे के बारे में बताएं, और अगर कुछ लोगों ने मदद हासिल करनी हो, सपोर्ट हासिल करनी हो, तो वो कहाँ जाएं, कैसे आपसे कांटेक्ट करें, या वहाँ पर कहाँ पर उन्हें सपोर्ट मिल सकती है? जी, बहुत शुक्रिया। हमारा एक इदारा है होराइजन एनजीओ, उसके अलावा हमारे पाकिस्तान की एक साइकेट्रिक सोसाइटी है, जो कि पाकिस्तान के लगभग 500 से ज्यादा साइकेट्रिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात को रिप्रेजेंट करती है। मैं उसका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। तो उसके आपने जो कहा कि कैसे वो हेल्प सीख कर सकते हैं पाकिस्तान के लोग या इवन पाकिस्तान से बाहर लोग, तो फेसबुक पेज पे वो होराइजन HORIZON उसको सर्च करें, या पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी ऑफिशियल को सर्च करें, वो हमें मैसेज करें। इंशाल्लाह वो जिस शहर से होंगे या जिस किस्म की उनको मदद की जरूरत होगी, हम उनका लेजॉन, उनका कनेक्शन उस शहर के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से करा देंगे। दूसरी बात है कि आपने कहा कि इसका हल क्या है। देखिए, हल तो सबसे पहले हर बीमारी का ये कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप मानेंगे नहीं मुझे प्रॉब्लम है, जब तक आपकी वाली बात आप आइडेंटिफाई भी नहीं करेंगे मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तब तक ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि मुझे ज़हनी मसला है, ज़हनी सेहत के मुतालिक मसला है, उसके बाद डॉक्टर को भी जाने से पहले, जरूरी नहीं कि हर चीज का हल डॉक्टर के पास हो, कोशिश सबसे पहले करें कि जैसे पाकिस्तान में वेस्ट के मुकाबले में इसलिए ज़हनी अमराज कम है, यहाँ पे हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। हम अगर रात को 8 बजे भी कहे कि किसी दोस्त से मिलना है तो दोस्त हमें टाइम देता है, जबकि वेस्ट में मेरे ख्याल में, आप लंदन में होती है, आपको ज्यादा पता है, लोगों को टाइम पहले से लोगों से लेना पड़ता है, इवन अपने दोस्तों से भी। तो हम किसी भी टाइम अपने दोस्त से फिजिकली मिल के अपने दिल का हाल कहते हैं, यानी कि वेंटिलेट और इमोशंस, अपने जज्बात के इज़हार को करके आदत हम उधर ही ठीक हो जाते हैं। हम अपने उन दोस्तों से मिलते हैं, अगर हमें पता हो कि हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो हम अपने उन दोस्तों से मिलेंगे कि जो कि इस पे हमें अच्छी राय दे सके। हमें बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है
تو ہمیں ان دوستوں سے میں ملوں گا کہ جو بزنس ریلیٹڈ مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر میرے ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمز ہیں تو میں اپنے ڈاکٹر دوستوں سے ملوں گا جو کہ مجھے اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر کیریئر ریلیٹڈ تو ایجوکیشن دوستوں سے ملوں گا. تو یہ تو سب سے پہلی بات کہ آپ اپنا ریلیشن شپ, آپ اپنے سوشل سپورٹ سسٹم کو یوٹیلائز کریں, موبلائز کریں, اور اپنا دل کا حال لوگوں سے ضرور شیئر کریں. فزیکل ایکسرسائز بہت امپورٹنس ہے. آپ جتنی فزیکل ایکسرسائز کریں گے جس میں تقریباً برسک واک یا تھوڑی بہت رن یا جاگ بہت شامل ہے, اس سے آپ کے دماغ کا جو فرنٹل ایریا ہے جس کو ہم فرنٹل لوب کہتے ہیں اس میں ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی. ایک تو اس سے آپ کو ڈیمینشیا یعنی کہ یادداشت کی بیماری مشکل ہے کہ آپ کو لاحق ہو فیوچر میں, لیکن آپ ججمنٹ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور آپ کے ڈپریشن میں نہ جانے کی صلاحیت, نہ جانے کا جو ہے خطرہ بہت کم ہو جائے گا. سب سے بڑی بات کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے اندر خوشی کے ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں جس کو ہم اینڈورفنس کہتے ہیں. تو ایکسرسائز اپنی لائف میں لازم ملزوم بنائیے. ضروری نہیں ہے کہ باہر برف پڑی ہے تو آپ رننگ نہیں کر سکتے. یوٹیوب لگائیے, ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کے لیے آپ کمرے میں بھی ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کمرے میں بھی یوٹیوب کے سامنے کر سکتے ہیں کمرے میں. تو یہ چند باتیں تھی میں چاہوں گا. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تحقیق بھی کہتی ہے لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کھائیے, کیونکہ یہ نہ صرف فزیکل بلکہ مینٹل ڈیزیز کے لیے, مینٹل ڈس آرڈرز کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے کہ آپ لو کاربوہائیڈریٹ لو شوگر ڈائٹ کھائیے. اور اس کے علاوہ کوشش کیجیے کہ اپنی پاسٹ پہ توجہ کم دیں, حال میں رہنے کی کوشش کریں اور فیوچر کے لیے پلان بنائیں, لیکن اپنے حال میں رہنے کی کوشش کریں اور اپنے پرابلمس کے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا سولوشن نکالیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ زیادہ تر پرابلمز جو ہوتی ہیں وہ یا تو ہم پاسٹ کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, یا ہم فیوچر میں جو انگزائٹی ہمیں ہوتی ہے وہ فیوچر کی ہوتی ہے, اور ڈپریشن ہمیں پاسٹ کا ہوتا ہے. تو ہم حال میں ہی رہیں, پریزنٹ میں ہی رہیں تو اپنی لائف کو بہت حد تک بہتر بنا سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ آپ کی. آئی تھنک کہ ہمارے جو لسنرز ہیں آپ کی باتوں سے ان کو ضرور ہیلپ ملی ہوگی. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ بزی ہیں اور آپ کا کام بھی آج کل بڑھ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. پلیجر. اور امید ہے کہ آپ جو یہ وائس پورے پاکستان میں ایشین کمیونٹی کو پھیلے تاکہ مینٹل ہیلتھ پہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. بہت شکریہ. تھینک یو. دوستو, امید ہے کہ ڈاکٹر علی کی باتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملی ہوگی. 2 باتیں جو بہت ضروری ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو ضرور بات کریں کسی ایسے دوست یا گھر والوں کے ساتھ جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ کو کچھ سپورٹ ملے گی. اگر آپ بات نہیں کریں گے تو کوئی یہ کیسے جانے گا کہ آپ کون سی تکلیف سے گزر رہے ہیں. دوسری بات, جو پریشانی ڈپریشن یا انگزائٹی کی جڑ ہے وہ یہ کہ یا تو ہم پاسٹ میں رہتے ہیں یا فیوچر میں. حال میں رہنا بھول گئے ہیں. پاسٹ کو سوچ کر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور مستقبل کا سوچ کر ہم انگزائٹی میں رہتے ہیں. دونوں صورتوں میں ہم حال یعنی پریزنٹ لائف کو بھول جاتے ہیں, اور یہ بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز میں ایک بڑی پرابلم ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ the mind can warn us what we should avoid. The heart can tell us what we should do. دل اور دماغ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں تو کامیاب رہیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت.